السلام علیکم، شہرنامے کے ساتھ میں ہوں فرحہ اورنگزیب اور میں ہوں ملیحہ خان۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ گورنمنٹ ایم سی بوائز ہائی اسکول اٹک میں 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں تعلیمی اور انتظامی شخصیات کے ساتھ تحصیل اٹک کے مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید بتائیں گے تقریب کے مہمان خصوصی سی ای او ایجوکیشن اٹک ڈاکٹر محمد اظہر اور اسسٹنٹ کمشنر اٹک عارف قریشی تھے۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے ٹیبلوز اور تقاریر کے ذریعے قائد اعظم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، جسے حاضرین نے خوب سراہا اور مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، جدوجہد اور قیام پاکستان کے اصولوں، ایمان، اتحاد اور نظم پر روشنی ڈالی اور کہا کہ نوجوان نسل کو ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تقریب کا اختتام قومی جذبے اور قائد اعظم کے افکار پر عمل کے عزم کے ساتھ ہوا۔ اور دوسری جانب بات کریں، آپ کو بتائیں دنیا بھر کی طرح سانگھڑ میں بھی مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار کرسمس ڈے نہایت جوش اور خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں واقع گرجا گھروں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سانگھڑ میں مسیحی برادری کرسمس ڈے کی خوشیاں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ شہر کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ عبادات کے دوران ملک کی سلامتی، ترقی، امن و امان اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بھاول نگر سے خبر شامل کریں گے۔ بھاول نگر میں بھی کرسمس کا تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مسیحی برادری کی جانب سے عبادات و رسومات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مرکزی چرچ میں عبادات کے سلسلے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ کامران اصغر کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ پادری ڈاکٹر عظیم عامر نے مسیحی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کرسمس محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آئینی حقوق حاصل ہیں اور حکومت پاکستان اقلیتی برادری کے تحفظ، فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسیحی برادری نے ملک کی ترقی میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح بورے والا میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا مقدس تہوار روایتی جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین، مرد نئے کپڑے زیب تن کیے چرچوں میں عبادت اور خوشی کی تقاریب میں مصروف ہیں۔ بورے والا کے مقامی چرچوں کو برقی قمقوں سے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا، جبکہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر مسیحی برادری نے مذہبی گیت گائے اور ملک و قوم کی سلامتی، امن و استحکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ کرسمس تقریبات کے دوران چرچ میں مل کر کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور مذہبی رسومات ادا کی گئیں، جن میں خواتین، مردوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر کرسمس کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ چرچوں اور حساس مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے اور شہری بلا خوف و خطر اپنی مذہبی عبادات ادا کر سکیں۔ خبر شامل کریں گے۔ ملک بھر کی طرح شکر گڑھ میں بھی آج کرسمس ڈے مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا ہے۔ انور الحق چودھری ایم این اے اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری حکومت پاکستان کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یو پی چرچ شکر گڑھ پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دی۔ انوار الحق چودھری نے کہا کہ کرسمس محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، جبکہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آئینی حقوق حاصل ہیں اور حکومت پاکستان اقلیتی برادری کے تحفظ، فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری نے ملک کی ترقی میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، جسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ عدنان عاطف اور سابق چیئرمین بلدیہ شکر گڑھ انعام الحق چودھری نے بھی موجود تھے۔ تقریب میں مذہبی ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چناب نگر میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او چنیو ڈاکٹر نوید عاطف نے کرسمس کے موقع پر مختلف گرجا گھروں کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا اور مسیحی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔
डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने गिरजाघरों के इंतजामिया से मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजामी उमूर का जायजा लिया और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उस मौके पर हिफाजती इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए मुतालिका इदारों को मजीद अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई। उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी मिलजुल कर अपनी खुशियां मनाते हैं, जबकि अक़लियती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। समाजी और सरकारी सतह पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है ताकि मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां पुरअमन माहौल में भरपूर अंदाज में मना सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मजीद क्रिसमस डे के हवाले से आपको बताएं, दुनिया भर में मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है, जबकि मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी ये त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी हैं, जिनमें मसीही बरादरी भरपूर शिरकत कर रही है। इस मौके पर मसीही बरादरी का पैगाम है कि क्रिसमस मोहब्बत, भाईचारे और अमन का त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार दुनिया भर में जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है और हैदराबाद में भी आज़ादी के साथ मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। और यहाँ आपको बताएं, आरिफ वाला में सुतरा पंजाब की प्रोग्राम के इंतजामिया की ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में गिरजाघरों के फादर्स, मसीही बरादरी, सुतरा पंजाब प्रोजेक्ट के अफसरान और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। मजीद देखते हैं आरिफ वाला से यासिर अली कंबू की ये रिपोर्ट। फाला में सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम क्रिसमस की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिसमस की खुशियों में इजाफा करते हुए केक भी काटा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली राना अरादत शरीफ खान थे। मुकर्रिन ने शिरका से खिताब करते हुए मजहबी हम आहंगी, बाहमी एहतराम और खुशियों की फ़रोग पर जोर दिया। अल्लाह पंजाब मरीम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक आज क्रिसमस केक कटिंग सेरेमनी जो है वो हमने अपने सेंट्री वर्कर्स और जो हमारी यहाँ की आरिफ वाला की क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर सेरेमनी का इनेकाद किया है और ये एक बड़ा अच्छा और एक मजहबी हम आहंगी और मोहब्बत का जो है यह दरस है। तकरीब में गिरजाघरों के फादर्स ने वज़ीर आला पंजाब की जानब से क्रिसमस के मौका पर किए गए मसाली इंतजामात को खूब सराहा और अक़लियती बरादरी की खुशियों में भरपूर शमूलियत पर इजहार तशक्कुर किया। हमारे मसीही भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है, ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह इस प्रोजेक्ट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज के हम इस मौका पर इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको मैं दोबारा जो है वो क्रिसमस की खुशियां जो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिसमस की यह तकरीब अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम के पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग दिया गया। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफ वाला। कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिसमस डे अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। मज़ीद जानते हैं कसूर से नईम इकबाल भलर की रिपोर्ट। पच्चीस दिसंबर हजरत ईसा यसूल मसीह की पैदाइश का दिन है। खुशियों और तोहफे तोहफ देकर क्रिसमस मनाने वाली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मसीह त्योहारों में क्रिसमस के त्यौहार को खास मुकाम हासिल है। मसीह कम्युनिटी के लोग चर्चों में इबादत करके मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद करते हैं। मुख्तलिफ तकरीबात में टैबलोज के जरिए पैगंबर खुदा यसूल मसीह से अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। जिस दिन यीशु मसीह की पैदाइश हुई, आसमानी फरिश्ते जमीन पर चढ़ाए मजूसी, पूरी दुनिया एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही थी जो ये जाहिर करती है कि मसीहत एक मेल मिलाप और मोहब्बत का मजहब है। ये खुशी का त्यौहार तो है ही, इसकी जो खास अहमियत या स्पिरिट जो है वो गुनाहों की निजात है। यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब ही निजात दहिंदा पैदा होना था और वो जमीन पर पैदा हुआ और बहुत से लोगों ने इस बात को माना भी और खुशी भी मनाई। डीपीओ कसूर की जानब से डीपीओ ऑफिस में क्रिश्चियन कम्युनिटी के एहलकारों और मुलाजमीन के एजाज में क्रिसमस का केक काटने की तकरीब का इनकाद किया गया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के एहलकारों व मुलाजमीन के बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। मसीह पुलिस एहलकारों में तोहफ व ईदी तकसीम करते हुए क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कसूर पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे तमाम फोर्स के मेंबरान जो कि आप यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस।
क्रिश्चियन कम्युनिटी के पुलिस एहलकार डीपीओ ऑफिस में अपने ऑफिसर के साथ खुशियां मनाने पर बहुत खुश दिखाई दिए। जिला भर में क्रिसमस के मौका पर 176 गिरजाघरों, मसीह आबादियों और क्रिश्चियन कम्युनिटी को कसूर में पुलिस की जानब से भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। इसी हवाले से मजीद बात करें और आपको बताएं कि पाकपतन में क्रिसमस का त्यौहार मज़ीदी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चर्चेज में होने वाली दुआ या तकरीबात में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद के साथ मेंबरान सूबाई असम्बली और सियासी समाजी हलकों के अफराद भी शरीक हुए। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं ASD चर्च में हमारे नुमाइंदे मियाँ तहमास हुमायूं से। जी तहमास, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह पाक पतन में क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, जिसकी खुशियों में शामिल होने के लिए रुकन असम्बली मोहतरमा मोतिया मसूद खालद हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे मजीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से कि आज पूरे पाकिस्तान में 25 दिसंबर मनाई जा रही है, इसी तरीके से पाक पतन में भी क्रिसमस के हवाले से आज इवेंट हो रहे हैं। केक काटा गया है। मोहतरम मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए और हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बराबर के इनकी खुशियों में शामिल हैं। मैं अपनी CM की तरफ से तमाम क्रिश्चियन भाइयों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिसमें कि मोहतरम वहाँ के लिए दुआ गो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी, रुकन असम्बली का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से क्रिसमस कम्युनिटी के साथ शाना बशाना खड़े होने की मुकम्मल हदायत है और हम इनकी खुशियों में इसी तरह शरीक होते रहेंगे। जी। और मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े मजहब, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक अली इमरान क्रिश्चियन टाउन में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। जी मलिक अली इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। और DPO सियालकोट की जानब से मैं बात करता चलूँ तो 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जुलूस की जो मॉनिटरिंग की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ 434 इबादत गाहों पर इबादत गाहें पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है इबादत करने के लिए चर्च पर गए हुए हैं। और चर्च से जो निकलने वाला सियालकोट का कदीमी जुलूस है वो अभी रास्तों पर गामजन है। और इसी त्यौहार को मनाने के लिए कम्युनिटी के बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है। ये उनसे जानते हैं कि वो इस रात को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बेटा। All the Christian community in the world wishing you a very happy Christmas. अहले पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे क्रिश्चियन टाउन की तरफ से आप सबको, हमारे सियालकोट की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। और मैं पाकिस्तान की इंतज़ामिया और ख़ास करके सियालकोट की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया का गुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जी। इसी तरह मजीद बात करें और आपको बताएं कि सरगोदा में भी क्रिसमस के मौके पर मसीही इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सोहिब अशरफ की हिदायत पर जिले भर में 3 लेयर सिक्योरिटी नाफिज की गई है और जिले पुलिस और एलीट फोर्स के चाको चौबंद दस्ते इबादत गाहों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जिले पुलिस ने इबादत गाहों के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए हैं और CCTV कैमराओं के जरिए कड़ी निगरानी जारी है। DPO मोहम्मद सोहिब अशरफ ने अफसरान को हिदायत की है कि वो फील्ड में मौजूद रहें और मसीही बरादरी की खुशियों में अमन अमान कायम रखें। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे कि मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जबकि ओकाड़ा की मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। तमाम गिरजाघरों में दुआया तक़रीबात का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तमाम चर्चेस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए भारी नफरी तैनात की है, जबकि मकामी DCO अहमद उस्मान जावेद और DPO राशिद हिदायत ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा और इस मौके पर मसीही बरादरी ने गिरजा घरों में बेहतरीन इंतजाम करने पर ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया।
यहाँ आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में कमिश्नर डीजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। उस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवैध इरशाद भट्टी, मेडिकल सुप्रीडियन डॉक्टर मोहम्मद नसीर ने भी उनके हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर अली सुमैर और दीगर हुकाम भी उनके साथ मौजूद थे। कमिश्नर डीजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने DHQ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, जहाँ तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, एमरजेंसी सर्विसेज और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया गया। उन्होंने वार्ड्स में जाकर मरीजों की अयादत की और फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात से मुतालिक आगाही हासिल की। मरीजों और लवाहिकीन ने इलाज मुआलजे की मौजूदा सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर ने हिदायत की कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात का बिला तात्तुर फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि सरकारी अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाज मुआलजे में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मरीजों से बेहतर रवैया रखने की हिदायत की गई, जबकि अस्पताल में सफाई सुथराई और मजमूई माहौल मजीद बेहतर बनाने के लिए भी अहकाम जारी किए गए। खबर शामिल करेंगे सांगढ़ से। सांगढ़ के तालुका संझोड़ो टाउन कमेटी के अफसर राना अनवर ने मेट्रो1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि शहर भर में तरक्याती कामों के लिए NTI होने के बावजूद MPA की जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा। शहर की गलियां, रोड और रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जफर अली लोधी से। इस वक्त हम मौजूद हैं सांगड़ के तालका संजोरो जो है, इस टाइम पर जो है हमने पूरे शहर का विज़िट किया है, टाउन कमेटी संजोरो का, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है। हम इस वक्त चेयरमैन से राणा मोहम्मद अनवर से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि अक्सर इतना वक्त होने के बावजूद जो है शहर के अंदर तरक्याती काम क्यों नहीं हुए, इनके मकसद वजह क्या है। राणा साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब हुए और चेयरमैन हुए, इनसे बात करते हैं। राणा साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र भाई, आपकी बहुत मेहरबानी, आप आए हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही है कि अब तकरीबन 1 साल से हमारे काम जो है ना वो नहीं हो रही है। आपकी बात सही है, 1 साल से जो है वो म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो भी काम थे वो हमारे MP साहब जाम शबीर अली ने जो है अपना CMO बदली करा के वो बंद करा दिए। हत्ता कि जब 1 साल पहले हमने उस वक्त में काफ़ी अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी सारे काम जो है ना वो कराए थे। 23 में जैसे चार्ज हुआ था चेयरमैन का, 23 तकरीबन 1.5 साल जो है ना वो हमने काफ़ी काम कराए। तो आपको ये पता था कि पीछे पड़े हुए इलाके थे, तो जैसे म्यूनसिपलिटी के हवाले से हमारे ये म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ जो है, ट्रांसपोर्ट सारी जो है वो नाकस हालत में थी। हमने उन सारी गाड़ियों को जो है वो रेनोवेट किया, अच्छा किया, बेहतर किया। उनके काफ़ी ट्रैक्टर्स वगैरह थे, उनके इंजन वगैरह बनवाए और वो गाड़ियों की रिपेयरिंग करवाई। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन साहब की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि 1 साल से गुज़िश्ता जो है काम रोके हुए हैं। हमारी गुजारिश यही है कि आला क़यादत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन साहब है, आसफ ज़रदारी साहब से यही अपील है कि फ़ौरन जो है इस मसले को हल करके सांगड़ तालका संजोरो में काम कराया जाए। जी यहाँ आपको बताएं, सेंट्रल जेल स्टाफ कॉलोनी हैदराबाद की रिहायशी खातून नसरीन अनवर ने प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आला हुकाम से अपील की कि उनके प्लाट पर मुबैना कब्जा खत्म करवाया जाए और उन्हें इंसाफ फरहम किया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ इमरान खान की इस रिपोर्ट में। बोलता मैं चेयरमैन हूँ, मैं काशिफ शोरों का बंदा हूँ, मैं बदमाश, मैं काशिफ शोरों का बंदा हूँ, मैं मेरी माँ पे हाथ उठाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नसरीन अनवर ने बताया कि उनके शोहर ने ओल्ड पुलेली केनाल के करीब वाक़े एक प्लॉट NOC के तहत अपने नाम अलाट करवाया था, जिसके अलाटमेंट लेटर, नक्शा, साइट प्लान और दीगर कानूनी दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं। हमारा प्लाट था CI सेंटर के साथ। बाबू पालारी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, हमारी UC का 19 का बाबू पालारी ने अपनी 4 दीवारी करवा के अपने गुंडे बिठा
दिए 5 बंदे 6 बंदे 10 बंदे वहाँ पे हथियारों के साथ। अब हम उनसे कैसे लड़ें? उसने कब्जा कर लिया, थाने वालों ने हमारे साथ गलत बयानी की, हमें इंसाफ दिलाया जाए। नसरीन अनवर ने इल्जामात आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC-19 के चेयरमैन बाबू पालारी ने मुबैना तौर पर उनके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना था कि इस हवाले से बल्दिया थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, ताहम पुलिस की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मैं नसरीन अनवर शाह हूँ, गवर्नमेंट मुलाजम थी, रिटायरमेंट में हुई हूँ सेंट्रल जेल से। हमारा प्लाट था, कब्जा कर लिया बाबू पलारी ने, पीपल्स पार्टी का है चेयरमैन, उसने कब्जा किया। कागज भी है, सब कुछ है, अनैसी है, उसका नक्शा है। बिलावल को, मुराद अली शाह को मैं अर्ज करती हूँ मेरे को मेरा इंसाफ दिलाया जाए। नसरीन अनवर ने SSP हैदराबाद, DIG हैदराबाद, मेयर हैदराबाद और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि वो मामले का नोटिस लें, मुबैना कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके प्लाट से कब्जा खत्म करवाया जाए। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, गुजरात से खबर देंगे। गुजरात में प्रेस क्लब में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और सीनियर डॉक्टर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें FBR की टीमों ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में छापे मारे, जिसके खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मैदान में आ गई है। मजीद बताएंगे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है और FBR के छापों का अंदाज हत्तक आमेज़ रहा। एसोसिएशन ने कहा है कि डॉक्टर्स को हिरासत करना और मरीजों को परेशान करना काबिल कबूल नहीं। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर FBR का रवैया दुरुस्त ना किया गया तो पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। पंजाब भर के डॉक्टर्स को हिदायत की गई है कि वो किसी भी वक्त एहतजाज की तैयारी रखें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि टैक्स नेट में अगर कोई कमी है तो ऐसे तरीके से बातचीत की जाए। और यहाँ आपको बताएं, जमायत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना अब्दुल हक सानी ने कहा कि मुल्क में सियासी इंतशार और अमन अमान के मसाइल पर तमाम सियासी जमायतों और इदारों को एक सफ़े पर मुत्तहद होना ज़रूरी है। उनका कहना था कि कौम में हसास महरूमी ख़त्म करने और हुक्मरानों को कौमी तरजीहात के पेश नज़र फ़ैसले करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल हक सानी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर ज़िले सदर अब्दुल वाहिद सबाती और जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अरमान चौहान भी उनके हमरा मौजूद थे। मौलाना अब्दुल हक सानी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने बताया कि KP बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाके बेहतरीन अमन अमान की सूरत हाल से दो चार हैं, जिसका मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की बाख्तियार हुकूमत है, लेकिन इसके मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस रही। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके दादा मौलाना समीउल हक 7 साल कबल रावलपिंडी और वालिद 9 माह कबल शहीद किए गए और कातलों का आज तक कोई सुराग न मिला। मौलाना ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को गजा में हमास के खिलाफ अपनी फौजें नहीं भेजनी चाहिए। और यहाँ खबर देख के एग्जीक्यूटिव लॉयर्स फोरम ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरावाला की सालाना इंतखाबात 2026-27 के लिए जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए नामजद कर दिया है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव लॉयर्स फोरम ने डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला के इलेक्शन 2026-27 के लिए जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए अपने ग्रुप मेंबर फखर अब्बास जट को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इस सिलसिले में मकामी होटल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के रूह रवा एग्जीक्यूटिव लॉयर्स फोरम के साबिक चेयरमैन व सदर और फौजदारी के मरूफ वकील मलक वकार मुश्ताक एडवोकेट ने फखर अब्बास जट को ग्रुप की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन 2026-27 के लिए जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर अपना उम्मीदवार नामजद किया और अपनी भरपूर वोट सपोर्ट का ऐलान करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला के वकला से फखर अब्बास जट एडवोकेट को जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब कराने की अपील की। तकरीब के मेहमान खुसूसी बलाल हजरा एडवोकेट थे। तकरीब में अब्दुल्ला कौसर, मियाँ यासर, राना तारक सदीक, अमानत खान, मियाँ नबील, मोहम्मद अशफाक कम्बो, हमजा मुगल, फरजाद खालिद बड़ैच, मोहम्मद बिन जलीस, साद अकराम क्रैशी, मनीब अनवर नारो, शहजाद उस्मान हाशमी, अफाक, राना शरोद अहमद खान, तमूर अकबाल चौधरी, मौज़म, बाबर, बलाल रशीद मुगल एडवोकेट समेत
दीगर वकला भी मौजूद थे। मुझे जो नजर आ रहा है फखर भाई का इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है। ये सारी चीजें हमने सब भाइयों ने खुद उसको हैंडल करना है, टैकल करना है। ठीक है, आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, अपन जितने भी आपके करीबी दोस्त हैं, जो लॉयर्स हैं, फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंशाल्लाह आप हमें वोट दें, हमें विन करवाएं। इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों को पूरा उतरेंगे। यहाँ बात करें और आपको बताएं कि उकाड़ा के इलाके नोल प्लाट में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी रफीशान अत्तारी की अहलिया का नमाज जनाजा मरकजी जनाजा गाह में इंतहाई रक़त आमेज़ माहौल में अदा किया गया। नमाज जनाजा की अमामत शेख हदीस मुफ्ती कासिम ने कराई, जबकि मरहूमा के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। नमाज जनाजा में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के अरकान, सूबाई और ज़िले ज़िम्मेदारान, उलमाए कराम, समाजी और सियासी शख्सियात, ताजिर बरादरी की और इलाके के शहरियों ने बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। उस मौके पर मरहूमा की दीनी खिदमत और खराज अक़ीदत पेश किया गया और पसमंदगान से ताज़ियत का इजहार किया गया। आखिर में मरहूमा की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की खुसूसी दुआ घुर गई। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल के इलाके पीरोवाल में वापडा की मुबैना गफलत के बायस बिजली के ट्रांसफार्मर ज़मीन पर ही रख दिए गए हैं, जिसके बायस अहले इलाका सख्त परेशानी का शिकार है। मजीद आपको बताएंगे, पीरोवाल में वापडा हुकाम की मुबैना लापरवाही ने शहरियों की जिंदगियों को खतरात से दो चार कर दिया है। इलाका मकीनों के मुताबिक खुले मकाम पर रखे गए ट्रांसफार्मर किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद मरतबा एक्सिन वापडा और SDO को शिकायत की गई है, मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी से फौरी नोटिस लेने और ट्रांसफार्मर्स को महफूज अंदाज में नस्ब कराने का मुतालबा किया है, ताकि मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके। कसूर में रेस्क्यू 112 के ज़ेर एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम में मॉक के हवाले से एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसका मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी का जायज़ा लेना था। मश्क के दौरान रेस्क्यू एहलकारों ने अमली मुजाहरे के जरिए अपनी पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कसूर अली अहमद मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलम के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहना जो है वो लाजमी है। इसी सिलसिले में कसूर रेस्क्यू जाना भाई के ज़ेरे तमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम में जो है मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद क्या था। जी सर, बताइएगा। जी, इस मॉक एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि हम अपनी ऑपरेशनल तैयारी को जज कर सकें कि हम किस हद तक तैयार हैं। तो इस सिलसिले में आज रेस्क्यू कसूर ने यहाँ पे अमली मुजाहरा किया है, किस तरह से हाइट पर फंसे हुए पेशेंट को कैसे निकालना है, कुएं के अंदर गिरे हुए बंदे को किस तरह से निकालना है, कोई मास कैजुअल्टीज इंसिडेंट हो गया है तो उसमें किस तरह से रिस्पांस करना है, और फायर फाइटिंग की टेक्निक को भी हमने जो है इधर इसका अमली मुजाहरा किया। तो इसके करने का मकसद यही है कि जब हम रिस्पांस कर सकें तो लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से उनकी इमरजेंसी को डील करें और अपनी तैयारी को भी जान सके, अच्छी तरह से रिस्पांस करके ज़िंदगी बचा सके किसी की। सर, अगर इस तरह की एक्सरसाइज हफ्तावार की जाए या एक महीने में एक दफ़ा की जाए तो इसमें रेस्क्यू जाना भाई की बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल बेहतरी है। हमारे वैसे भी हर शिफ्ट में भी एक्सरसाइज होती है, बावजूद उसके कि हमने ये कोड रेड लगाकर और इसके लिए तमाम स्टाफ को इकट्ठा किया है ताकि सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सके मैक्सिमम स्टाफ, और इस तरह से ये ज़्यादा कुछ सीख सकेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट कसूर था या मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कसूर और हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो कि कम्युनिटी की तरफ से आता है। जैसा कि आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि वाह कैंट GT रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार खातून अपने 3 मासूम बच्चों समेत हादसे का शिकार हुई है। हादसे के नतीजे में खातून मौके पर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि बच्चे और जख्मी वालिद को रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाह कैंट के GT रोड पर एक फैमिली मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रही थी कि अचानक हादसे की जद में आ गई। हादसे के नतीजे में बच्चों की माँ मौके पर ही दम तोड़ गई है, जबकि तीनों बच्चे और इनका वालिद जख्मी
जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद बच्चों की चीखों पुकार के इल्मनाक मनाजिर देखकर मौके पर मौजूद अफराद अश्कबार हो गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि GT रोड पर बेहंगम ट्रैफिक, तेज रफ्तारी और कानून शिकनी पर काबू पाया जाए ताकि मजीद कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं कि थाना मंगला कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO मंगला कैंट और टीम ने शराब सप्लाई करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 350 बोतलें शराब की बरामद की गई हैं। थाना मंगला कैंट ने पुलिस के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई नेटवर्क को नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम क्रिसमस के मौके पर शराब सप्लाई करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। कार्रवाई के दौरान शराब तैयार करने का सामान भी बरामद हुआ, जबकि मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना मंगला कैंट में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। DPO जहलम तारिक अजीज सिंधु के मुताबिक जिले भर में शराब सप्लायर्स और मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में पुकार 15 पर डकैती की झूठी कॉल करना महंगा पड़ गया है। बताएंगे आपको खानेवाल से खबर है, जहां पुकार 15 पर डकैती की झूठी कॉल करना शहरी के लिए मुसीबत हो गई। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी डकैती की तस्दीक ना हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने कॉलर को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम इसहाक ने 3 मुलजमान के हाथों 30 लाख रुपए लूटने की झूठी इत्तला दी है, जबकि वाक़े के बाद खुद घर में जाकर छिप गया। थाना सिटी पुलिस ने झूठी इत्तला देने पर टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ आपको बताएं, खानेवाल में DPO इस्माइल खड़क क्रिसमस की तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के लिए फील्ड में मुतहरिक रहे। जिले इंतजामिया की जानिब से क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया, जबकि पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। खानेवाल में क्रिसमस के मौके पर चर्चेज, इबादत गाहों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जिले भर में 650 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहे। DPO इस्माइल खड़क ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट्स का अचानक मुआयना किया और सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जिम्मेदारियों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले पुलिस की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली की मुरतब की गई है, जबकि अमन व अमान और बरकरार रखने के लिए पुलिस गश्त भी बढ़ा दिया गया है। शहरियों और मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिले पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। और यहाँ खबर दी आपको, सफिया फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम फ्री एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, रुकन सूबाई असम्बली सरदार खान बहादुर और दीगर ने शिरकत की है। फ्री एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब नहायत बावकार माहौल में मुनक़िद की गई, जिसका बुनियादी मकसद आवाम को बर वक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाना है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में कीमती जानों को बचाया जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए सफिया फाउंडेशन के बानी चौधरी अख्तर हुसैन कहा कि ये सर्विस इलाके की अहम ज़रूरत थी, जो बगैर किसी इम्तियाज़ के हर ज़रूरतमंद के लिए दस्तयाब होगी। एम्बुलेंस जदीद तिब्बी आलात से लेस है, जबकि तरबियत याफ्ता अमला हर वक्त खिदमत के लिए भी तैयार रहेगा। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत है। फ्री एम्बुलेंस सर्विस खास तौर पर गरीब और दूर दराज इलाकों के मकीनों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। तकरीब के अख्तिताम पर शुरा ने सफिया फाउंडेशन की इस अवामी खिदमत को सराहा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई।
चिन्योट में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी हॉल में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा और खुशियाँ बांटी। तकरीब में मुस्तहिक मसीही खानदानों में तोहफ़ भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि ज़िले इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले भर में क्रिसमस के मौके पर खुसूसी क्रिसमस बाजार कायम किए गए हैं, जहां बुनियादी अशिया ज़रूरी कम कीमत पर दस्तियाब की गई हैं। तमाम गिरजाघरों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया ताकि तकरीबात में मजीद रंगारंग बन सके। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर ज़िले भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरी बिला खौफ व खतर अपनी मजहबी तकरीबात मना सकें। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने ज़िला इंतजामिया के इकदाम को सराहा और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ का अज़म का इजहार किया। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर अता तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एवरी टाइम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गिव्स यू गूज़बम्प्स एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि ये किसी हिस्टोरियन ने किसी लीडर के बारे में ये नहीं कहा कि few individuals alter the course of history, fewer still modify the map of the world, and hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. तो ये कितना बड़ा एजाज है कि अल्लाह के फजल से ना सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमानों को आजादी दी, बल्कि तारीख के अंदर एक ऐसा नक्श बनाया which will remain for all times to come. और मैं एंड पे सिर्फ ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, हमारा फख्र है, और इसने हमें इतना कुछ दिया है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को ना सिर्फ रेलेवेंट समझती है, पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर को, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को मानती है। तो इस पाकिस्तान की कदर करें और अल्लाह ताला जो है वो आपको रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज ये पाकिस्तान इस नारे के ऊपर बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इन अशार के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि जो कुछ है वो इस पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। ये परवीन शाकिर का एक शेर है कि बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, और बज़्म अंजुम में कबा खाक की ओढ़ी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। और इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखती रहिए Metro 1 न्यूज़।